وہ کچن میں کھڑی حمران کے لیے بریانی بنا رہی تھی اور حمران کو ہی سوچ رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حمران کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر حمران اسے نہ ملا تو وہ زندہ نہ رہ پائے گی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب سمرا کچن میں داخل ہوئی۔ یہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی تم اور ویکینڈ کے علاوہ کچن میں؟ سمرا حیرت سے تھوڑی پہ انگلی رکھتے ہوئے بولی، کیونکہ زینیا ایسا ہی کرتی تھی۔ اپنے ہاتھ کا کچھ کھانے کو دل کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ بنا لوں۔ اس نے بہانہ گھڑا، کاش کہ تمہارا دل روز روز کرے۔ پتیلے سے ڈھکن ہٹاتے ہوئے وہ بولی اور کھانے کی خوشبو سونگھی۔ زینیا کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ ہائے نہیں پپو، پھر میں پڑھوں گی کیسے؟ وہ دہی میں زیرہ مکس کرتے ہوئے بولی، سسرال میں یہ سب ہی کام آتا ہے، کام کرنے کی عادت ڈالو گی تبھی کام کرنے کا عادت ہوگی۔ انہوں نے بڑی عورتوں والا مخصوص جملہ بولا۔ وہ جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ وہ رخ پھیرتے ہوئے بولی تاکہ پپو کچھ نہ سمجھے، حمران نے کہا تھا کہ وہ خود بات کرے گا۔ سمرا کچھ نہ بولی اور ڈش میں چاول منتقل کرنے لگی۔ بہت مزے کی بریانی ہے۔ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے جب حمران نے پہلا چمچ لگاتے ساتھ کہا۔ مصطفیٰ شہر سے باہر تھے۔ زینیا کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے الحمدللہ۔ وہ زینیا کی طرف دیکھتے ہوئے محبت سے بولی، لگتا نہیں ہے ویسے۔ اس نے زینیا کو چھیڑا۔ پپو دیکھ رہی ہیں اپنے بیٹے کو؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ اسے پتا تھا کہ وہ اسے چھیڑ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہوا ہے مجھے اور انہیں پتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ وہ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ہاں ہاں ہاں۔ اس نے ایک اونچا کہکا لگایا لیکن پپو کے گھورنے پر اسے اپنے کہکے کا گلا گھونٹنا پڑا۔ خاموشی سے کھاؤ دونوں، سمرا سخت لہجے میں بولی اور وہ دونوں فوراً شریف بچے بنے۔ سمرا ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ کیا ان دونوں کے درمیان کچھ ہے یا نہیں۔ میرا کلاس فیلو تھا نا عمار، اس کا بریک اپ ہو گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو حمران نے ان دونوں کو کہا، کیوں وہ اور فضا تو ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے؟ اس نے اپنی کلاس فیلو کا نام لیتے ہوئے حیرت سے کہا۔ عمار چاہتا تھا کہ فضا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے لیکن فضا نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے گزارے گی، بس یہی بات تھی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ سمرا خاموشی سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ٹھیک کہا فضا نے، وہ کون ہوتا ہے اس پر پابندیاں لگانے والا؟ اس نے فضا کے فیصلے کو سراہا۔ میرا نہیں خیال کہ فضا کا فیصلہ درست تھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے اس نے اپنی رائے دی۔ کیوں؟ کیونکہ جو محبوب لگا ہے وہ پابندی تو نہ ہوئی۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ فلمی ڈائلاگ ہے، میں ان سب سے متفق نہیں ہوں۔ جب ہمارے محرم ہمیں نہیں روک رہے کسی صحیح بات سے تو نامحرم کو کیا حق ہوا؟ وہ جواباً بولی، دیکھو جب دو لوگ محبت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی بات تو ماننی پڑتی ہے، کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے نا۔ وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ حمران کمپرومائز رشتوں میں ہوتا ہے، احساسات میں نہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ محبت بھی اس وقت رشتہ بنتی ہے جب وہ نکاح کی صورت میں ہو۔ اس نے اپنا فلسفہ بیان کیا۔ مطلب محبت کی کوئی ویلیو ہی نہیں، بغیر نکاح کے محبت نہیں۔ وہ خفا ہوا۔ ہر چیز دائرے میں اچھی لگتی ہے، اس نے بحث سمیٹی تھی۔ مطلب اگر آپ کا محبوب آپ کو غلط چیز سے منع کر رہا ہے تو آپ اس کی بات نہ مانو۔ لیکن وہ بحث کے موڈ میں تھا۔ بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ نامحرم کو محرم پر ترجیح نہ دے۔ میری بات کا مطلب یہ تھا، اگر ایک چیز ہے آپ کا باپ بھائی منع کر رہا ہے کہ یہ نہ کرو لیکن آپ نہیں رک رہی، لیکن آپ کا محبوب آپ کو روکے تو آپ بنا سوال کیے رک جاؤ، یہ غلط ہے۔ کیونکہ نامحرم محرم سے زیادہ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اگر گھر والے غلط بات سے نہیں روک رہے اور محبت کرنے سے روک رہے ہیں تو یہ سوچ کر رک جائیں کہ نصیحت ہے یہ، باقی نامحرموں کو سر پر نہ چڑھائیں۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ حمران لاجواب ہو گیا۔ بہرحال میں نے اس ساری بحث سے یہ نتیجہ حاصل کیا ہے کہ آئندہ تم سے بحث نہ کروں، کیونکہ مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر وہ بولا اور سمرا مسکرا دی۔ زینیا کو پتا تھا کہ اگلے کو لاجواب کیسے کرنا ہے۔ سمجھدار لگتے ہو، وہ داد دینے والے انداز میں بولی۔ مہربانی ہے آپ کی، وہ فوراً بولا۔ وہ ہنس پڑی لیکن سمرا تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ آپ لوگوں نے بلایا تھا، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ مصطفیٰ اور سمرا نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مصطفیٰ بولے، بیٹا ہم چاہ رہے تھے کہ تمہاری منگنی کر دیں، تمہارا آخری سیمسٹر ہے تو پھر اس کے بعد شادی۔ سمرا نے بغیر کسی تہمت کے بات کا آغاز کر دیا۔ میرا کیا قصور ہے؟ میری آزادی کیوں سلیب کرنا چاہتے ہیں؟ وہ خفگی سے بولا۔
शादी से आज़ादी का क्या तलक? समरा ने उसे घूरा। तलक है ना, अभी हम सोच रहे हैं क्या सिर्फ मंगनी कर दें। शादी तो एक आधा साल तक करेंगे, मुस्तफ़ा संजीदा अंदाज में बोले और साथ ही समरा को हथौला रखने का इशारा किया। चले फिर जो आप लोगों को मुनासिब लगे। वो बोला। अब वो कर भी कह सकता था, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो। समरा ने पूछा। है तो सही, कौन है? समरा जल्दी से बोली। वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। हमरान अभी जीनिया का नाम लेगा, आप लोग जानते हैं उसको। उसने तजस्सुस फैलाया। कौन है? अब की बार समरा के मुस्तफ़ा भी बोले। अरूज। वो मुस्कुराकर बोला। फातिमा ने जहाँ एक गहरी सांस मुस्तफ़ा ने जहाँ एक गहरी सांस ली। इन्हें पता था कि हमरान दुनिया का इंतखाब कभी नहीं करेगा। वहाँ दूसरी तरफ समरा का रंग जर्द पड़ा। इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन आज ये गलत फहमी दूर हो गई। हमरान तो अरूज को पसंद करता है, पर दुनिया का क्या होगा? वो तो बहुत आगे निकल चुकी है। कल दुनिया के मोबाइल में हमरान की तस्वीरें देखकर उन्होंने हमरान से बात करने का फैसला किया था, फिर आज तो सब कुछ खत्म हो गया। इनके एग्जाम शुरू हो चुके थे। वो लाइब्रेरी से निकल रही थी जब वो सामने से आते लड़के से टकराई। नतीजन किताबें जमीन बोस हो चुकी थी। आई एम सॉरी। वो दाऊद था, इसका क्लास फेलो। उसने नीचे से किताबें उठाते हुए कहा। इस ओके। वो भी नीचे बैठकर किताबें उठाने लगी। गलती उसकी भी थी, वो अपनी ही परेशानी में थी। मैं अपने ध्यान में था तो आपको देख नहीं सका। उसको किताबें पकड़ाते हुए वो बोला। जी। वो जवाबन बोली और किताबें लेकर चल पड़ी। दाऊद वहाँ ही खड़ा उसको जाते हुए देखता रहा। पता नहीं क्यों ये लड़की उसे अच्छी लगती थी। मुझे हमरान को बताना चाहिए कि पप्पा मेरा रिश्ता देख रही है। उसने कहा था कि वो खुद ही बात कर लेगा। अब वक्त आ गया है कि वो बात करे। जीनिया ने दिल में सोचा। पेपर्स की वजह से इसका यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से सामना कम ही हो रहा था, और घर पे भी इनके आपस में कम ही मुलाकात होती थी, क्योंकि हमरान अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टडी करता था और वो सब एक दोस्त के घर ही जमा होकर पढ़ते थे। लेकिन अब बात करना जरूरी हो गया था। क्या हुआ है? परेशान क्यों हो? लॉन्च में बैठे हमरान ने उससे पूछा। कुछ बताना है तुम्हें? वो दोनों हाथों की उंगलियों का बाहम फंसाते हुए बोला। बताना तो मैंने भी कुछ है, खैर तुम पहले बताओ। लॉन्च की सफाई करती नूरा को देखते हुए वो बोली। वो अजीब नजरों से इसकी तरफ देख रही थी। उसने नूरा को बाहर जाने का इशारा किया। तुम बताओ पहले। मैंने कल पप्पो को फोन पे बात करते सुना। वो किसी रिश्ते वाले से मेरे रिश्ते की बात कर रही थी। तुमने कहा था कि तुम इनसे बात करोगे, कब करोगे बात? वो परेशान लहजे में बोली। मैंने कल बात की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो उदासी से बोला। क्यों इनकार कर दिया? वो रोने वाली हो रही थी। पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो इस चीज के खिलाफ है कि एक घर में दो रिश्ते हो, क्योंकि फिर अगर एक की जिंदगी में मसला पैदा हुआ तो दूसरे की भी मुतासिर होती है। ये ही वजह होगी। वो परेशानी को उंगलियों से मसलते हुए बोला। फिर अब वो खौफजदा हुई। तुम परेशान ना हो, मैं दोबारा बात करूंगा। उसने इसकी परेशानी जाहिर करना चाहिए। मैं बात करूं? उसने पूछा। मर्जी है तुम्हारी। वो सोफे की पुष्ट से टेक लगाते हुए बोला। वो भी उदास हो गई और उठकर पप्पो के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी उसकी नजर किचन के दरवाजे के पास खड़ी नूरा पर पड़ी, जो मुंह पर हाथ रखे हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। पप्पो, आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो दोनों हाथों की हथेलियां को आपस में रगड़ते हुए बोली। बोलो जीनिया। समरा बोली। इन्हें अंदाजा था कि वो क्या बात करने आई है। पप्पो, मैं हमरान को पसंद करती हूँ। वो नीचे देखते हुए बोली। वो अभी तक खड़ी हुई थी। बैठकर बात करते हैं। उन्होंने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो खामोशी से बैठ गई। देखो जीनियत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें इस बात पर यकीन करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए जो भी फैसला करूंगी वो तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और हमरान की शादी हो। समरा ने संजीदगी से जवाब दिया। ये झूठ जरूरी था। अगर वो सच कहती तो जीनिया का दिल दुखता। इन्हें बुरा बनने तो मंजूर था, लेकिन जीनिया को दास करना नहीं, और इन्हें पता था कि जीनिया इनका फैसला मान लेगी। जी। वो बस इतना ही कह सकी और बाहर निकल गई। पप्पू से वो कैसे बहस करती। बाहर निकलकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन लॉन्च खाली था। उसने हमरान का नंबर मिलाया, लेकिन वो बंद था। अब वो ही अंकल और पप्पू को समझा सकता था। वो कमरे में किताबें फैलाए बैठी थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। हमरान सुबह से पता नहीं किधर गायब था। इसका नंबर भी बंद था।
दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो चौंकी। तुम यहाँ? हमरान को सामने देखकर वो हैरान हुई, साथ ही उसके चेहरे पर नागवारी के एतराज़ आए, क्योंकि हमरान कमरे के दरवाजे को लॉक लगा रहा था। उसे इस तरह हमरान का कमरे को लॉक लगाना अच्छा नहीं लगा था। माजरत, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या बात हुई मम्मी से। वो कमरे के वसत में खड़ा होते हुए बोला, तुम्हें बड़ी परवाह है, जैसे सुबह से फ़ोन बंद किया हुआ है। वो खफकी से बोली। सारा दिन वो फक्त हमरान का नंबर मिलाती रही, लेकिन वो बंद जा रहा था। मैं बहुत परेशान था, मोबाइल का तो होश ही नहीं रहा था। तुम बताओ क्या कहा मम्मी ने? वो फिक्रमंदी से बोला। वो नहीं मानी। वो अफसरदा लहजे में बोली, तुम परेशान ना हो, मैं पापा से बात करता हूँ। वो उसे तसल्ली देते हुए बोला, साथ ही वो मोबाइल पे कुछ टैप कर रहा था। तुम्हें मेरी ज़रा परवाह नहीं, मैं इतनी परेशान हूँ, तुम्हें मोबाइल पे लगे हुए हो। वो खफा हुई। पापा को ही मैसेज कर रहा हूँ, वो जवाबन बोला। अगर अंकल ना माने तो शायद तुम्हारे लिए आसान हो मुझे छोड़ना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। कहते हैं ना कि औरत अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलती। मुझे अब लगता है कि ये सच है। अगर अंकल और पप्पू ना मारे तो मेरे लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो ठंडी आह भरते हुए बोली। तभी दरवाज़ा खटका और दोनों एकदम घबराए। कोई भी उन दोनों के कमरे में एक साथ देखकर गलत समझ सकता था। हमरान ने उसे इशारे से कहा कि वो ड्रेसिंग रूम में छुप रहा है। बेगम साहबा, ये जीनिया बीबी का फ़ोन किचन में रह गया था। अभी मैंने देखा तो फ़ोन आ रहा था। समरा टीवी लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी जब नूरा ने उनके पास आकर उनसे ये कहा, तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? मोबाइल को नूरा से लेकर सोफे पर रखते हुए बोली, जी अब तो ठीक है, खाना बन गया है। नूरा ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें रोका था ना कि मत करो काम बेहाल, अब तुम जाकर आराम करो। वो नरमी से बोली, जी अच्छा। अब वो अगर आप ये फ़ोन जीनिया बीबी को दे दे, उनके पेपर्स हो रहे हैं, तो कोई ज़रूरी काम ना हो। नूरा झिझकते हुए बोली, ठीक है मैं दे देती हूँ, तुम आराम करो। वो सोफे से उठते हुए बोली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। जीनिया के कमरे के पास पहुंचकर वो रुक गई। अंदर से जीनिया के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। जीनिया कह रही थी कि अगर अंकल ना माने तो शायद तुम्हारे लिए आसान हो मुझे छोड़ना, लेकिन मेरे लिए मुश्किल होगा। कहते हैं ना कि औरत अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलती। मुझे अब लगता है कि ये सच है। अगर अंकल और पप्पू ना माने तो मेरे लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने एकदम दरवाज़ा खटखटाया। इन्हें घबराहट हो रही थी क्योंकि वो तो कमरे में अकेली थी। मोबाइल इनके पास था। हमरान और जीनिया इस तरह एक दूसरे के कमरे में जाकर बैठने को पसंद नहीं करते थे। जीनिया की आवाज़ एकदम बंद हुई और 3 मिनट के बाद उसने दरवाज़ा खोला। किससे बात कर रही थी? समरा कमरे में झांकते हुए बोली, किसी से भी नहीं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इसकी चोरी पकड़ी गई थी। तुम्हारा फ़ोन बज रहा था। मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो बोली, लेकिन वो पहले से ज़्यादा परेशान हो गई थी। जीनिया ने खामोशी से मोबाइल ले लिया। तुम्हारा लास्ट पेपर कब है? वो वहीं खड़े खड़े बोली। उसने जवाबन तारीख बताई। तो तुम मुस्तफ़ा के दोस्त की मंगनी पर हमारे साथ तुर्की नहीं जा सकती। वो मजीद परेशान हुई। जिस दिन मंगनी है इसका अगले दिन मेरा लास्ट पेपर है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे लिए परेशान ना हो, 1 हफ्ते की बाद मैं रह लूँगी। वो मुस्कुरा कर बोली। उन्होंने सिर्फ सर हिलाने पर इख्तिलाफ किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ी। तभी इन्हें हमरान अपने कमरे से निकलता दिखाई दिया। वो ठटकी। इनके दिल में कहीं ना कहीं ये था कि शायद हमरान जीनिया के कमरे में हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इनका दिमाग चकराने लगा। नूरा ने इन्हें 1-2 दिन पहले ही जीनिया की एक अजीब आदत के बारे में बताया था। वो बैठे बैठे खुद से बातें करना शुरू कर देती और अंदाज ऐसा होता था जैसे उसके सामने कोई बैठा है। उन्होंने नूरा की बात पर तो यकीन नहीं किया, लेकिन आज अपनी आंखों से हकीकत देखने के बाद इन्हें समझ आ गई थी कि नूरा सच कह रही थी। जीनिया वाकई कोई जहनी बीमारी में मुबतला है। दूसरी तरफ जीनिया ने जब अपने कमरे के सामने से हमरान को गुजरते देखा तो वह हैरान और परेशान हो गई। वो तो ड्रेसिंग रूम में छुपा था, फिर वो कैसे और कब बाहर निकला? क्योंकि ड्रेसिंग रूम में कोई खिड़की नहीं थी। एक रोशनदान था जो कि ज़्यादा ऊंचा था और इस पे काले शीशे लगे थे जिनके आगे ग्रिल थी। शीशे तो खुल सकते थे मगर ग्रिल नहीं। ये क्या माजरा था? ये तो हमरान ही बता सकता था।
क्या सोच रही है? मुस्तफ़ा साहब ने गुमसुम बैठी समरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ भी तो नहीं। वो एकदम चौंकी। कुछ तो है, अगर आप बताना नहीं चाहती तो अलग बात है। वो समरा की तरफ देखते हुए बोले। मैं सोच रही थी कि अगर मैं ना जाऊं क्योंकि पीछे जीनिया अकेली होगी। वो इनकी तरफ देखकर बोली, मर्जी है आपकी, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। कंबल टांगों पर फैलाते हुए वो बोला। इन्हें बुरा नहीं लगा था। वो जानते थे समरा को जीनिया की कितनी परवाह है। मैं चली जाती हूँ, हो सकता है कि ऐसा ना हो। वैसे भी बहुत से लोगों की आदत होती है अपने आप से बात करने की, लेकिन मैं वापस आके जीनिया को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूंगी। समरा ने दिल में सोचा, मैं चलूंगी, फिर आपने बिजनेस के सिलसिले में 1 महीने के लिए वहां से ही चले जाना है, फिर तो 30 दिनों बाद ही मुलाकात होगी। वो मुस्कुराकर बोली। मुस्तफ़ा साहब ने मुस्कुराकर साबत में सर हिलाया। जिनकी बेटी की मंगनी थी वो इनके करीबी दोस्त थे। मंगनी का फंक्शन तो एक दिन में ही खत्म हो जाता, क्योंकि इनके दोस्त ने कहा था कि वो तीनों कम से कम 1-2 हफ्ते तो रहे। लेकिन मुस्तफ़ा सिर्फ 5 दिन के लिए माने। फिर इनकी इंग्लैंड की फ्लाइट थी। समरा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जाना पड़ रहा था। मुस्तफ़ा को वो चाहकर भी नहीं बता पा रही थी। कैसी अपने के लिए पागल का लफ्ज सुनना तकलीफ दे होता है। क्या कहा? अंकल ने जीनिया को हमरार को किचन में दाखिल होते देखकर कहा। व्हाट्सअप क्या किया था उनको? और तुम्हें तो पता है कि वो व्हाट्सअप को कम ही इस्तेमाल करते हैं। मैं सोच रहा हूँ तुर्की जाकर इनसे बात करूंगा अभी, अगर की तो कहीं फिर मम्मी को शक ना हो। इसके सामने बैठते हुए वो बोला, बहल जो भी जवाब हो वो फौरन बता देना। एक तो पेपर और ऊपर से ये टेंशन, मेरी तो नींद उड़ गई। वो दोनों हाथों से सर थामते हुए बोली, मैं हूं ना, टेंशन ना लो, हम दोनों जरूर मिलेंगे। वो उसे तसल्ली देते हुए बोला, इंशाल्लाह। किचन में दाखिल होती नूरा को देखते हुए वो बोली, जो अजीब नजरों से उसे देख रही थी। तब पता नहीं जब वो और हमरान साथ होते तो नूरा उसे ऐसे क्यों देखती। शायद इसका हमरान पर क्रश हो। तुम रह लोगी अकेली? समरा जीनिया के गले लगते हुए बोली। आज वो तीनों तुर्की जा रहे थे, जबकि जीनिया मुलाजमों के साथ घर पे ही थी। जी पप्पू, आप मेरे लिए परेशान ना हो, मैं आराम से रह लूंगी और फिर 4-5 दिन की बात है। वह मुस्कुराते हुए बोली। पहले मैंने सोचा था कि नहीं जाती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुस्तफ़ा क्या सोचेंगे कि मैं इनके साथ कहीं नहीं जाती। अगर हमरान रह जाता तो मेरे पास रुकने का जवाब था, लेकिन अब जाना जरूरी है। समरा परेशान लहजे में बोली। और इस वजह से मुस्तफ़ा के साथ दूसरे शहर रहने नहीं जाती थी, क्योंकि फिर बच्चे अकेले घर में रहते तो अजीब लगता। मैंने कहा ना, आप आराम से जाकर शादी एंजॉय करें और मेरी फिक्र ना करें। वो जवाबन बोली। समरम सिर्फ मुस्कुरा ही सकी। उन्होंने सोच लिया था कि वापस आकर जीनिया को किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएगी। उन्होंने इस बात का पता मुस्तफ़ा हमरार को ना लगने दिया और नूरा को भी मना कर दिया। नाश्ता बन गया है। दुपट्टे को कंधों पर फैलाती वो किचन में दाखिल होते हुए नूरा से बोली, जी 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 बन रहा है। जीनिया की तरफ देखते हुए वो घबरा कर बोली, फिर ड्राइवर को कहना कि गाड़ी भी तैयार कर दे। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए वो बोली। नूरा ने झट साबत में सर हिलाया। पानी पीते हुए वो नूरा की हरकत नोट कर रही थी। जाए बगाए उस पर एक अजीब खौफजदा सी नजर डालती। मसला क्या है? बोतल को मेज पर पटकते हुए वो बोली, कोई भी नहीं। नूरा ने घबरा कर कहा, कुछ तो है, तुम्हारी हरकत दिन ब दिन मशकूक हो रही है। वो जांचती नजरों से नूरा की तरफ देखते हुए बोली। नूरा ने फौरन नफी में सर हिलाया और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। अंदाज ऐसा था कि अब भागी। तुम्हारी शादी कब है? उसने पूछा। मेरा मंगेतर अब बाहर मुल्क गया है। देखे जी कि फिर कब होती है? आमलेट को प्लेट में मुंतकिल करते हुए नूरा ने जवाब दिया। नाश्ता तैयार था। नाश्ता जीनिया के सामने रखकर वो फौरन से किचन से बाहर निकली। जीनिया ने ताज्जुब से सर हिलाया। उसे लग रहा था नूरा को किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज उसका लास्ट पेपर था। पप्पू लोगों ने 3 दिन तक वापस आना था। वो पेपर दे आई तो सो गई और अब दरवाजे के जोर जोर से खटखटाने पर उसकी आवाज खुली थी। उसने टाइम देखा तो 12 होने वाले थे। तुम सामने खड़े हमरान को देखकर उसकी आधी खुली आंखें पूरी की पूरी खुल गई। वो तो तुर्की में था। हाँ, मैं एक जरूरी बात करनी है। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। बोलो। वो हैरान हुई। डैड मान गए हैं हमारी शादी के लिए और उन्होंने कहा है कि वो मम्मी को भी मना लेंगे। वो पुरजोश अंदाज में बोला, तो तुम ये
बताने के लिए वापस आ गए। वो खुशगवार अंदाज में बोली। इतनी खुशी हुई थी कि दिल कर रहा था कि भगड़ा डाले। कभी कभी खुश ना हो रहा, वो खफकी से बोला। बहुत 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 खुश हूँ। दोनों बाजू फैलाते हुए उसने अपनी खुशी का इजहार किया, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। वो संजीदा हुआ। अब क्या हुआ? उसने दिल पे हाथ रखा। डैड ने कहा है कि वो मम्मी को समझाएंगे, लेकिन अब ये तो मम्मी की मर्जी है कि वो मारे या ना मारे, वो सुधा लहजे में बोला। फिर उसके दिल की धड़कन तेज हुई। एक और हल भी है। उसकी तरफ देखकर वो बोला। क्या? वो फौरन बोली। डैड ने कहा है कि अगर हम दोनों निकाह कर ले तो फिर आंटी आसानी से मान जाएगी, और फिर इन्हें यह एहसास होगा कि ज़रूरी नहीं कि अधूरे रिश्तों में पेचीदगियां दोनों रिश्तों की निस्बत ज्यादा होती है। वो इसकी तरफ देखकर संजीदा अंदाज में बोला। व्हाट? ये अंकल ने कहा। उसका मुंह ही खुल गया। अंकल ये सब कैसे कह सकते हैं? मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी। ये ऑडियो सुनकर तुम जरूर यकीन करोगी। मैं अपने फ्रेंड के साथ था उधर। हम इस्तकबुल घूम रहे थे जब मुझे डैड का ये मैसेज मिला। मैंने इनसे कहा था कि अगर हम कोर्ट मैरिज कर लें तो फिर उन्होंने ये जवाब दिया। मैंने वहाँ से ही टिकट करवाई और भागा आया। वो जेब से मोबाइल निकालते हुए बोला और व्हाट्सएप खोला। ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। जहाँ तक बात है सबरा की, तो मैं उसे समझा लूँगा कि इनके बच्चे हो तुम दो लोगों को पता है कि क्या सही और क्या गलत है। और जीनिया को कहना कि परेशान ना हो। मोबाइल के स्पीकर पर मुस्तफा साहब की आवाज़ गूंज रही थी। हमरान ने सवाली नजर से इसकी तरफ देखा। वो कंफ्यूज हो रही थी। अगर पप्पो नाराज हो गई तो? जीनिया कमाल वल्द कमाल अहमद, आपका निकाह हमरान मुस्तफ़ा कमाल के साथ बस 5,000 हक महर के किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने जीनिया से पूछा। कबूल है, जीनिया ने जवाब दिया। मुबारकबाद का शोर उठा। निकाह हो चुका था। उसने ये सोचकर निकाह कर लिया ताकि अंकल जो परमिशन दे रहे, और अब वो तैयार हो रही थी। नूरा पता नहीं कहाँ गायब थी, शायद सो रही थी। उसने सफ़ेद कलर का प्लेन फ्रॉक पजामा और इसके ऊपर सुर्ख रंग का काबदी दुपट्टा जेबदार कर रखा था। हल्के फुल्के मेकअप और जुल्ली ने उसके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। अपने लंबे ब्राउन बालों पे वो बुरश कर रही थी जब नूरा कमरे में आई और देख कर दरवाजे पे ही रुक गई। कहाँ थी तुम? वो गुस्से से बोली। नूरा को तो निकाह के बाद इसके पास होना चाहिए था। जब हमरान ने कमरे में आकर निकाह का कहा तब से अब तक वो कमरे से बाहर नहीं जा सकी थी। जी वो सो रही थी। सर में दर्द था तो गोली लेने के लिए घर में आई। नूरा घबराती हुई बोली। हमरान ने तुम्हें बता दिया होगा कि ये बात किसी को नहीं बतानी। सर पर दुपट्टा टकाते हुए वो बोली। जी। नूरा ने बेमुश्किल आवाज निकाली और जाने को परतोल रही थी। जीनिया ने नागवारी से नूरा की हरकत मुलाजा फरमाई और उसे जाने का कहा। बेचारी जीनिया ने ज़हरे लब कहा। उसे नूरा से दिली हमदर्दी हो रही थी, जो हमरान को पसंद करती है, लेकिन अब इन दोनों की शादी देखकर परेशान हो रही थी। फाइनल आज हम मिल ही गए। हमरान ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मुंह दिखाई। उसने दूसरा हाथ फैलाया। यार इतनी दफा देखा हुआ है तुम्हें, अब क्या मुंह दिखाई देता? वो संजीदगी से बोला। हद है वैसे। वो हाथ वापस खींचते हुए खफकी से बोली। देखा, मैं चौंका हूँ मैं, और तो मेरा गिफ्ट भी मुख्तलिफ होना चाहिए ना। वो जेब से स्याह गुलाब निकालते हुए बोला। वैसे लोग सोना चांदी और या हीरे देते हैं। उसके हाथ से गुलाब लेते हुए उसने छेड़ा। मैंने कहा ना मैं हूँ अनोखा, तो मैं हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला। वो जवाब में मुस्कुरा ना सकी। फुप्पो के रिएक्शन का सोचकर मुझे डर लग रहा है। वो घबराते हुए बोली। आज दिन बहुत खूबसूरत है, सो प्लीज इसको वहमो और खासतों की नजर ना करो। इनके इशारे से इसने उससे चुप होने का कहा। वो साबत में सर हिलाते हुए मुस्कुराई। सुबह उसकी आंख खुली तो हमरान कमरे में मौजूद नहीं था। फ्रेश होकर वो कमरे से बाहर निकली और इसने पूरा घर छान मारा, लेकिन हमरान नहीं था। हमरान किधर है? किचन में नाश्ता बनाती नूरा से उसने पूछा। वो तो नहीं है। नूरा डरते डरते बोली। क्या मतलब नहीं है? किधर गया है? वो परेशान हुई। हमरान का नंबर मिलाया, लेकिन वो बंद जा रहा था। हो सकता है मुगीज की तरफ हो, लेकिन मुगीज क्या इधर है?
وہ تو نکاح میں نہیں تھا، پھر کدھر گئے یہ؟ خبر خیر آ جائیں گے، زینیا دل میں سوچا۔ کچن سے باہر نکل گئی۔ نورا نے گھبراتے ہوئے سمرہ بی بی کو واٹس ایپ پہ کال ملائی جو بی بی نے ہی اسے سکھائی تھی۔ سمرہ پریشانی سے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً پاکستان پہنچ جائے۔ نورا نے ابھی جو خبر سنائی اس خبر نے انہیں چکرا کر رکھ دیا تھا۔ نورا کا کہنا تھا کہ زینیا بی بی پہ واقعی کوئی جن ہے۔ رات کو وہ کسی دلہن کی طرح تیار ہو رہی تھی اور حمران کی بات کر رہی تھی اور صبح اٹھ کر حمران کا پوچھ رہی تھی۔ نورا گھبرائی ہوئی تھی، جو چاہتی تھی کہ سمرہ جلدی سے جلد واپس آئے۔ اسے زینیا سے بہت ڈر لگ رہا تھا، کہیں وہ اس کو کچھ نہ کہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جن تو نہیں، لیکن زینیا کسی شدید ذہنی بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب مسئلہ مصطفیٰ اور حمران سے چھپانے کا تھا اور واپس جانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی تھا۔ یار ایک غلط کام ہو گیا مجھ سے، زینیا نے فون پر اقرا سے کہا۔ حمران تو صبح سے غائب تھا اور اب اسے ٹینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں اس نے ٹھیک کیا یا نہیں۔ اقرا کو اس نے یہ بتایا ہوا تھا کہ وہ حمران کو پسند کرتی ہے، باقی کے معاملات اس نے اقرا کو نہیں بتائے تھے، لیکن اب اس نے سوچا کہ بتا دے تاکہ کچھ ٹینشن کم ہو۔ ہاں بولو، خیریت ہے نا سب؟ اقرا نے پھر فکر مندی سے کہا۔ یار وہ پھپھو میری اور حمران کی شادی کے لیے نہیں مان رہی تھی تو ہم نے خود ہی شادی کر لی۔ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے بولی۔ واٹ، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ جانتی ہو نا آنٹی کو؟ اقرا چیخی۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، میں کیا کرتی؟ پھپھو نہیں مان رہی تھی، مجھے تو یہی حل نظر آیا۔ اس نے اپنا دفاع کیا تو تم انہیں مناتی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ نکلی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، میں کیا کرتی؟ پھپھو نہیں مان رہی تھی، مجھے تو یہی حل نظر آیا۔ اس نے اپنا دفاع کیا تو تم انہیں مناتی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ نکلی نا تم بھی وہی ٹپیکل لڑکی، کسی کے جھانسے میں آ گئی۔ اقرا نے اسے لتاڑا۔ میں کسی کے جھانسے میں نہیں آئی، انکل نے پرمیشن دی تبھی میں مانی۔ اب اصل بات بتانا ضروری تھا۔ پھر ٹھیک ہے، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، پھر کیا ٹینشن ہے؟ اقرا یہ سن کر کچھ مطمئن ہوئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں پھپھو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت تو مجھے لگا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اب پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، انکل سنبھال لیں گے آنٹی کو، تم مجھے تصویریں تو بھیجو، میں بھی تو دیکھوں کہ کیسی لگ رہی تھی۔ اقرا نے کہا بھیجتی ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جیسی اس نے گیلری کھولی تو وہ پریشان ہو گئی کیونکہ نکاح کی ایک بھی تصویر نہیں تھی۔ اس نے پورا موبائل دیکھ لیا، کہیں بھی پکچر نہیں تھی۔ وہ سخت پریشان ہوئی کیونکہ موبائل کا پاسورڈ اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا تھا۔ پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی شاید موبائل میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، لیکن باقی پکچر بھی تو ہے۔ پھر کیا ہوا ہے؟ مصطفیٰ نے سمرہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، پرسوں جا رہے ہیں نا ہم؟ سمرہ چونکتے ہوئے بولی۔ نہیں، آج رات کی فلائٹ ہے تم دونوں کی، مجھے آج ہی نکلنا ہے۔ تو حمران کہہ رہا تھا کہ ہم بھی آج ہی واپس چلے جائیں، وہ جواباً بولے۔ سمرہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، ان کو کوئی جھوٹ نہیں بولنا پڑ رہا تھا۔ 4.5-5 گھنٹے کی اس فلائٹ میں وہ بہت مشکل سے خود کو پرسکون ظاہر کرتی رہی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی فوراً زینیا کے کمرے کی طرف بڑھی اور سوئی زینیا کو اٹھایا۔ پھپھو آ! وہ سمرہ کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ اگر حمران واپس آ گیا تو وہ پھپھو کو کیا بولے گی؟ مصطفیٰ کو جلدی جانا پڑ گیا تھا تو ہم دونوں واپس آ گئے، اس کے گلے لگتے ہوئے سمرہ بولی اور بڑی مشکل سے آنسوؤں کو کنٹرول کیا۔ اچھا پھپھو کا ہم کے زیب استعمال کرنے پر اسے تھوڑی حیرت ہوئی۔ تم ٹھیک سے رہی نا؟ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ جی پھپھو میں ٹھیک رہی، وہ جواب بولی۔ پھپھو کے انداز پہ وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ تم آرام کرو، صبح بات ہوتی ہے۔ اس کا گال تھپتھپا کر وہ باہر نکل گئی اور کب سے رک کے گئے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ دوسری طرف زینیا نے پھر سے حمران کا نمبر ملایا جو صبح سے پتہ نہیں کدھر غائب تھا، لیکن ابھی بھی اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ داؤد نے اسائنمنٹ اور پیپرز میں اس سے ہیلپ لی تھی تو اس نے داؤد کو اپنا نمبر دیا تھا کہ اگر کوئی کام ہو تو پوچھ لینا، اور ابھی داؤد نے اس کو میسج کیا تھا کہ وہ اپنی امی کو ان کے گھر رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ پڑھ کر تو اس کا دماغ چکر آ گیا۔ وہ فوراً حمران کے کمرے کی طرف بھاگی اور دھڑا دھڑ دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا تکلیف ہے؟ حمران نے غصے سے کہتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے موجود زینیا کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ تم یہاں؟ خیریت ہے نا؟ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے
बोली, कैसा मसला? मेरे क्लास फेलो है ना दाऊद, तुम जानते हो उसको? उसने मुझे अभी मैसेज किया कि वो अपनी अम्मी को भेजना चाहता है। वो सोफे पर बैठते हुए बोली। तो वो हैरत से बोला, तो ये कि इसको तो मैं रोक दूंगी, लेकिन अगर कोई और अच्छा रिश्ता आया तो पप्पू हाँ कर देंगी, अब क्या होगा? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो क्या इशू है? शादी तो तुमने करनी ही है, और दाऊद तो काफी अच्छा लड़का है। वो उसके साथ सामने बैठते हुए बोला, ये मजाक का वक्त नहीं है। वो नागवार अंदाज में बोली। ये मजाक उसे बुरा लगा था। इसमें मजाक कहाँ से आ गया? शादी तो करनी है ना तुमने, या फिर सारी जिंदगी कंवारी रहना है? वो संजीदा अंदाज में बोला, शर्म करो कुछ, अपनी बीवी से कोई ऐसा मजाक करता है? वो गुस्से से बोली, कौन सी बीवी? किसकी बीवी? वो हैरत से बोला, मैं तुम्हारी बीवी क्या हो गया? नशे में तो नहीं हो क्या? वो तंजी अंदाज में बोली। हमरान की गैर संजीदगी उसे एक आंख ना भाई। मैंने तो नहीं, अलबत्ता तुमने जरूर नशा किया हुआ है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैंने और तुमने कब शादी की? वो नागवार अंदाज में बोला। हमरान मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, मुझे मजीद तंग ना करो, इस मसले का कोई हल निकालो। उसने बाकायदा हाथ जोड़े। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे परेशान ना करो, लेकिन तुम इतनी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। मैं तुमसे कोई निकाह नहीं किया, यकीनन तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। वो भी परेशान हुआ। तुम कैसी बातें कर रहे हो? लगता नींद में हो। अभी परसों रात मैं निकाह किया हमने, और तुम उस रात मेरे साथ ही थे। फिर तुम पता नहीं कल किधर चले गए और आज वापस आए हो तो बहकी बातें कर रहे हो। वो तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं तुर्की में था और तुम क्या बोल रही हो? वो गुस्से से बोला, मेरा नहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुमने खुद मुझे से निकाह किया और अब इस सब ड्रामे का मकसद? वो हैरत और गुस्से के लिए मिले जुले तासर के साथ बोली, मुझे पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कोई निकाह नहीं किया। वो एक एक लफ्ज चबाकर बोला, तुम निकाह करके मुकर क्यों रहे हो? वो हैरान हुई। मैंने तुमसे कोई निकाह नहीं किया, और अगर अब तुमने मुझ पे ये इल्जाम लगाया तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। मेरे कमरे से निकल जाओ। उंगली उठाकर उसे वार्निंग देते हुए वो बोला, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस सब का क्या मकसद है? कोई गलती हुई मुझसे? वो बस रोने लगी थी। दफा हो जाओ। वो धाड़ा। जीरिया सहम गई। सबरा घबराती हुई हमरान के कमरे की तरफ बढ़ी। वो सो रही थी जब नूरा ने इन्हें उठाकर बताया कि हमरान और जीरिया लड़ रहे हैं। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो हमरान चिल्ला रहा था और जीरिया सहम कर खड़ी थी। क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो? वो घबराते हुए बोली, पप्पू इसने मुझे धोखा दिया है। जीरिया फौरन बोली, इसका दिमाग खराब हो गया है। हमरान ने फौरन जवाब दिया, इसने मुझसे परसों शादी की है और अब ये इस बात से मुकर रहा है। वो रोते हुए बोली, मैंने कहा ना कि इसका दिमाग खराब हो गया है। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए वो बोला, ये झूठ बोल रहा है और मैं सच कह रही हूँ। आपको यकीन है ना मेरी बात का? पप्पू के कंधे पर हाथ रखते हुए उसने पूछा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये तो तुर्की में था। समरा परेशान हुई, लेकिन ये वापस आया और इसने मुझसे निकाह किया था। वो बोली, जीरिया मैं और ये आज इकट्ठे वापस आए हैं तुर्की से। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। उन्होंने उसका चेहरा थपथपाया। ये फिर वापस चला गया होगा, लेकिन सच में हमने शादी की। वो इनको परे करते हुए बोली, आखिर कोई इसकी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई तस्वीर या निकाहनामा? सर थामे बैठे हमरान की तरफ देखते हुए उन्होंने जीनिया से पूछा। तस्वीरें थी लेकिन डिलीट हो गई। निकाहनामा है, मैं अभी लाती हूँ। नफरत भरी एक निगाह हमरान पर डाले हुए वो बोली और कमरे से बाहर निकल गई। आप भी शायद जीनिया को ही सच्चा समझ रही है। मैं सुतेला जो हूँ। वो तलखी से बोला, मैं जो समझ रही हूँ फिलहाल तुम्हें नहीं समझा सकती। दोनों हाथों से सर थामते हुए वो बोली और बैठ गई। दराज में मौजूद चाबियों से उसने अलमारी खोली और लाकर में कोड लगाया। जैसे ही उसने लाकर के अंदर देखा तो साख्त रह गई। निकाहनामा नहीं था। उसने खुद निकाहनामा सामने रखा था। उसने पूरा लाकर छान मारा, लेकिन निकाहनामा नहीं था। उसका दिमाग घूम गया। ये क्या हो रहा था? पहले तस्वीरें गायब थी, अब निकाहनामा। उसने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन निकाहनामा नहीं मिला। निकाहनामा पता नहीं किधर गया है। हमरान के कमरे में दाखिल होते हुए पप्पू से बोली। हमरान ने जताती नजरों से समरा को देखा। तुम्हारे मोबाइल का और
اور لاکر کا پاسورڈ صرف تم جانتی ہو، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمرا نے پوچھا۔ وہ دل ہی دل میں پریشان ہو گئی تھی۔ ان کا بالکل ارادہ نہیں تھا زینیا کی بیماری کے بارے میں کسی کو بتانے کا، لیکن اب اس کی کوئی چال ہوگی۔ حمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ شٹ اپ! حمران چیخا۔ پھپھو آپ نورا کو بلائیں، اسے سب پتا ہے۔ وہ اچانک یاد آنے پہ بولی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ حمران بدلہ لے رہا ہے۔ کیا واقعی حمران اور زینیا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور انہوں نے شادی بھی کی ہے؟ جب نورا آ گئی تو زینیا کی تسلی کے لیے انہوں نے نورا سے پوچھا۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نورا نے نفی پہ گردن ہلائی۔ جھوٹ کو کیوں بول رہی ہو؟ سب پتا ہے تمہیں۔ اس دن کچن میں اس نے تمہارے سامنے ہی مجھ سے اظہار محبت کیا تھا، اور پھر اس کے بعد بھی تم نے ہمیں کئی دفعہ باتیں کرتے سنا۔ وہ نکاح والے دن بھی تم میرے کمرے میں آئی تھی۔ سچ بولو، سچ بولو۔ وہ زور زور سے چیختے ہوئے بولی۔ بی بی جی، آپ خود اپنے آپ سے باتیں کرتی تھی، حمران صاحب نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ سمرا کے پیچھے چھپتے ہوئے نورا نے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بھی حمران کی طرف ہے۔ ظاہر ہے حمران اس کی مدد جو کرتا ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ حمران تو خاموش تماشائی بنا تماشا دیکھ رہا تھا۔ زینیا، حمران نے کبھی کسی ملازمہ کو پیسوں سے مدد نہیں کی، وہ تو ملازموں کو سر پر چڑھانے کے خلاف ہے۔ سمرا نے اسے سمجھایا۔ آپ چوکیدار انکل سے پوچھ لیں، پرسوں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ رات گئے گھر آیا تھا۔ اس نے اگلا گواہ لانا چاہا، اس کی ضرورت رہی۔ گیٹ پہ اس نے ہم دونوں سے یہ کہا کہ آپ دونوں کے بغیر گھر سونا تھا۔ اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو وہ یہ نہ کہتا۔ سمرا نے اس کی اگلی بات بھی جھٹلائی۔ اس نے سب کو خریدا ہے، میں جانتی ہوں۔ میں سب کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وہ حمران کی طرف بڑھتے ہوئے بولی اور حمران کا کالر پکڑا۔ اپنی حد میں رہو اور بکواس بند کرو۔ ایک جھٹکے سے کالر چھڑاتے ہوئے وہ بولا اور کھڑا ہو گیا۔ میں نے جو تھپڑ تمہیں مارا تھا، اس سب کا بدلہ لینے کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو نا؟ جانتی ہوں میں تم جیسے تھرڈ کلاس لڑکوں کو، مگر زینیا کا مال کا کمزور مت سمجھنا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن دیتے ہوئے وہ بولی۔ تم سمرا چکرا گئی۔ زینیا نے انہیں پورا واقعہ پہلے بتا چکی تھی، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ زینیا کی دماغ روح اس قدر بھٹک چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اپنی بکواس بند کرو، میں بتاتا ہوں تمہاری اصلیت۔ جیب سے موبائل نکالتے ہوئے وہ بولا۔ زینیا اور سمرا چونک گئی۔ زینیا نے کچھ عرصے پہلے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن میں نے اس کو کہا کہ میں عروج سے پیار کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ ہم دوست ہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں یہ سب کہہ رہی ہے۔ وہ ممی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے خود مجھ سے کہا تھا کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ بتاؤ سچ۔ وہ نورا کی طرف بڑھتے ہوئے غصے سے بولی۔ نورا ایک دم رونا شروع ہو گئی۔ بی بی جی، میں نے کہا ہے نا کہ زینیا بی بی کے ساتھ جن ہے۔ نورا سمرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تم جاؤ، حمران ناگوار انداز میں نورا سے بولا۔ نورا سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگی۔ تم نکاح والی بات مانو، ورنہ تم زینیا کا مال کو اچھے سے جانتے ہو۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے وہ بولی۔ یہ تمہارا نمبر ہے نا؟ موبائل زینیا کے سامنے کرتے ہوئے وہ بولا۔ ہاں۔ وہ دیکھ سکتی تھی کچھ ماہ پہلے زینیا نے مجھے میسج پہ کہا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، اور میں نے کہا کہ نہیں، میں عروج سے پیار کرتا ہوں۔ آپ یہ چیٹ دیکھ سکتی ہیں۔ زینیا کی نظر انداز کر کے حمران نے موبائل سمرا کی طرف بڑھایا۔ سمرا نے پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، انہیں سمجھ آ گیا تھا سارا کچھ، لیکن زینیا نے جھٹ سے موبائل پکڑا۔ میسج دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے حمران سے میسج پہ کہا تھا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن حمران نے کہا کہ وہ عروج سے پیار کرتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اس سے پہلے وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل کو زمین پر مارتی حمران نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس کو کسی اچھے سائیکولوجسٹ سے چیک کروائے۔ زینیا کا مال کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ غصیلے انداز میں بولا۔ تمہاری حقیقت میں سب کے سامنے لے کر آؤں گی حمران مصطفیٰ، یہ زینیا کا مال کا وعدہ ہے۔ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولی، لیکن اندر سے وہ ہل چکی تھی۔ کیا وہ واقعی ذہنی بیمار ہو گئی تھی؟
वो सर थामे बेड पर बैठी थी। इसने दोबारा से पूरा कमरा छान मारा था, लेकिन निगाहनामा नहीं था। वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी, जो हुआ वो सब असल नहीं था, वो सब असल था। ऐसा होना नामुमकिन है कि ये सब इसकी सोच हो। उसे सबूत लाकर पप्पो को दिखा रहे थे। हमरान ने जो इसके साथ किया वो कभी भूलेगी नहीं, ना ही हमरान को भूलने देगी। ऐसा बदला लेगी कि वो उसकी सारी जिंदगी याद रखेगा इसका पाला किससे पड़ा था। सबरा ने एक अफसुदा निगाह नाश्ता करती जीनिया पे डाली, जिसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो सारी रात नहीं सोई, और इसकी आंखें सुर्ख आंखें इस बात की चुगली खा रही थी कि वो सारी रात रोती रही है। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेगी। हम सबूत हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सबूत नहीं मिला तो मैं खुद आपके साथ डॉक्टर के पास जाऊंगी। सामने पड़े जूस के जग पे निगाहें जमाए वो आंसू को जब्त करते हुए बोली, ठीक है। सबरा जवाब पर बोली। रास्ते के बाद उन्होंने मुगीज को बुलाया। जीनिया भी पास ही मौजूद थी। निकाह वाली बात तो नामुमकिन है। एक तो हमरान तुर्की में था, दूसरा वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करे और मुझे शामिल ना करे, ये नामुमकिन है। मुगीज ने कहा, तुम निकाह में मौजूद नहीं थे, लेकिन तुम इस चीज के तो गवाह हो कि हमरान मेरे साथ होता था यूनिवर्सिटी में। जीनिया ने कहा, हाँ वो आपके साथ होता था, क्योंकि एक तो ये वजह थी कि आप फैमिली हो और आप दोस्त नहीं बनाती, और उसे ये भी लगता था कि वो आपसे मोहब्बत करता है। मुगीज ने कहा। इस बात पर जीनिया ने पप्पू की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मैंने कहा था ना। फिर सबरा फौरन सीधी, फिर ये कि मैंने इससे कहा कि वो इस बारे में ठीक से सोचे, क्योंकि मैं हमरान को अच्छे से जानता हूँ और वो जुनिया जैसी लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता। फिर 2 दिन बाद उसने मुझे कॉल की और कहा कि वो गलत था, वो तो अरूज से मोहब्बत करता है, और ये बात सच है। हमरान को ऐसी लड़की चाहिए जो इसके आगे कुछ ना बोले, और इसके मुताबिक अरूज ऐसी ही है। वो और इसके मुताबिक अरूज ऐसी ही है। मुगीज ने एक सांस में अपनी बात मुकम्मल की। समरा ने उसे जाने का कहा और उसके जाने के बाद जीनिया की तरफ देखा, जो किसी गहरी सोच में मुगलिश थी। अब किधर जाना है? समरा ने पूछा। वो हर उस जगह गई जहाँ वो कभी हमरान के साथ गई थी, लेकिन वहाँ पे ना कोई उसे पहचानता था, ना हमरान को। समरा इसके साथ ही थी। अब वो आखिरी जगह आई थी जहाँ के लोग इन सबको जानते थे। वो इसी ही होटल में मौजूद थी जिसमें हमरान ने उसे प्रपोज किया था, और वो इस वेटर से बात कर रही थी जो उस दिन इन्हें मिला था। मैम, जिस दिन की आप बात कर रही है उस दिन आप अकेली थी, आपके साथ और कोई नहीं था। वेटर ने इसकी सवाल के जवाब में कहा, आप याद करें, मैं हमरान आए थे, आप हमें इधर सीढ़ियों पे ले आए थे। वो सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोली। सबरा खामोशी से खड़ी देख रही थी। मैं भी उस दिन की ही बात कर रहा हूँ, आप तब पहली और आखिरी दफा ही अकेली आई थी। वेटर बोला, अगर मैं उस दिन अकेली थी तो फिर वो पूरी जगह खाली क्यों थी? उसने तो फोन करके नहीं कहा था कि वो पूरा एरिया खाली करवा दे? इस बारे में क्या बहाना है आपके पास? माथे पर बल डाले हुए तेज लहजे में बोली। आप जिस वक्त आई उस वक्त बहुत कम लोग यहाँ मौजूद थे। आपने देखा होगा कि नीचे वाले फ्लोर में भी आका दाका लोग थे, और ऊपर वाला भी तो बिल्कुल खाली था, और आपकी वजह से मैंने किसी और को ऊपर नहीं आने दिया। वेटर ने तफसील से जवाब दिया, और यकीनन खाना और केक भी मैंने मंगवाया होगा। वो नागवार अंदाज में बोली। उसे गुस्सा आना शुरू हो गया था। क्या ड्रामा था ये सब? वहाँ पे तो कोई खाना नहीं था। आप आधा पौना घंटा वहाँ पे बैठी रही, लेकिन आपने कुछ भी खाने को नहीं मंगवाया। इसलिए तो मैं आपके पास आया कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन तब आप जा रही थी। वेटर पुरतबाद अंदाज में बोला। ये बात सुनकर जीनिया लड़खड़ा गई। सबरा ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। मैं सच कह रही हूँ, उसने मुझसे थप्पड़ का बदला लेने के लिए सारा ड्रामा रचाया है। वो सामने बैठे साइकोलॉजिस्ट की तरफ देखते हुए बोली, आपके पास निकाह या कोई और सबूत? डॉक्टर हमजा ने पूछा। ये ही तो मसला है, मेरे पास इस वक्त कोई सबूत नहीं है। सारे सबूत उसने मिटा दिए और लोगों को भी खरीद लिया, लेकिन वो सब मेरी सोच नहीं है, वो सब असल में हुआ है। आप मेरा यकीन करें। बोलते बोलते इसकी आवाज भर गई। कितना मुश्किल लग रहा था ये यकीन दिलाना कि वो पागल नहीं, और लोगों से ज्यादा खुद इसको इस चीज का यकीन दिलाना। मैं जानता हूँ ये वक्त मुश्किल है, लेकिन वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजर ही जाता है। अब ये
یہ ہم پہ مختصر ہے کہ برے وقت کو اچھے کیسے بنائیں۔ آپ پریشان رہو، ہم مل کر اس مسئلے سے نکلیں گے، ڈاکٹر حمزہ گمبھیر انداز میں بولے۔ اس نے سامت میں سر ہلایا، حلق میں آنسو کا گولا پھنسا تھا۔ آپ پلیز کمرہ نمبر 9 میں جائیں گی، وہاں پہ موجود ڈاکٹر سے کہیں کہ ڈاکٹر حمزہ نے بلایا ہے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو، ڈاکٹر حمزہ نے کہا، اور وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ سمرا نے پوچھا۔ اس کو شیزوفرینیا ہے، اس بیماری میں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، آپ کو آوازیں سنائی دیتی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب ریئل ہے اور آپ کے ساتھ یہ سب اکیلے میں ہوتا ہے، اگر دوسروں کے سامنے بھی ہونے لگے تو وہ زیادہ شدت کا ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے جواب دیا، یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ سمرا پریشان ہوئی۔ آ جائے زیریا، ڈاکٹر نے دروازے پر کھڑی زیریا کو دیکھ کر کہا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم آپ کی تھراپی کریں گے اور کچھ ورزشیں جو آپ کریں گی اور پھر آپ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں واپسی پر وہ خاموش رہی اور اپنے آگے کے حالات کے بارے میں سوچنے لگی۔ سمرا فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا زیریا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ سمرا نے زیریا سے کہا جو خالی پلیٹ کو گھور رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہمران، میں نے تمہیں کتنا برا بھلا کہا۔ وہ سامنے بیٹھے ہمران کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، بس تم ٹھیک ہو جاؤ اور ہم ابھی بھی دوست ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، وہ جواب پر بولی۔ ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے؟ ہمران نے پوچھا۔ جمعرات کو۔ سمرا بولی، اگر میری کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو بتائیے گا۔ وہ بولا، تو مصطفیٰ کو فی الحال کچھ نہ بتانا تھا، جب میں مناسب سمجھوں گی تب بتا دوں گی۔ وہ زیریا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو اب بے دلی سے کھا رہی تھی، آپ فکر مند نہ ہو، نہیں بتاؤں گا۔ اس نے جواب دیا، تمہارا کیا پلان ہے آگے کا؟ سمرا نے زیریا سے پوچھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زیریا کم سے کم سوچے۔ رزلٹ بالکل اچھا نہیں آیا، میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ وہ حتمی انداز میں بولی، کوئی بات نہیں، اگر رزلٹ تمہارے مطابق نہیں آیا، اگلا سمسٹر میں زیادہ محنت کر لینا، لیکن اس طرح بیچ میں سب کچھ چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمران نے اسے سمجھایا۔ ہمران ٹھیک کہہ رہا ہے، اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سمرا نے کہا، میں جس اذیت سے گزر رہی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں، آپ لوگ تو صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں، میری تکلیف، میرے درد کو محسوس نہیں کر سکتے، زیریا تیز لہجے میں بولی۔ سمرا رونا شروع ہو گئی۔ زیریا کی تکلیف اس سے نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ تم یہ تو سوچ سکتی ہو کہ میں تمہارا درد محسوس نہیں کر سکتا، لیکن تم ممی کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ جس اذیت سے تم گزر رہی ہو وہ بھی اس کو محسوس کر سکتی ہے۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہمران نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ سوری پپو۔ ہمران کی باتیں سن کر وہ سخت شرمندہ ہوئی، واقعی وہ پپو کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی تھی؟ کوئی بات نہیں، سمرا مسکرائی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، نورا بھی پاس تھی، موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔ وہ سارا دن یہی سوچتی رہتی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ کوئی اگر اس کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا کہ یہ وہی زیریا ہے جو اپنی اتنی کیئر کرتی تھی، اب تو اسے اپنا خیال رکھنا بھول چکا تھا۔ سوچیں ہر وقت دماغ میں گھومتی رہتی تھی، اسے نیند نہیں آتی تھی، بھوک نہیں لگتی تھی، لیکن پپو کے لیے وہ خود کو کنٹرول میں رکھتی تھی، ورنہ دل کرتا تھا کہ دھارے مار کر روئے۔ پپو سے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، اگر کوئی کام ہوتا تو نورا کو اس کے پاس بیٹھنے کا کہہ دیتی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہی تھی۔ دوسری طرف نورا جب زیریا کو دیکھتی تو یہی سوچتی کہ انسان کیا ہوتا ہے اور پھر کیا ہو جاتا ہے۔ وہ آج یونیورسٹی آئی تھی، اس کا رزلٹ تو اتنا اچھا نہیں آیا تھا جیسا ہمیشہ آتا تھا، لیکن پپو کے مجبور کرنے پہ وہ آج آ تو گئی، لیکن اسے لگا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ پڑھائی پہ وہ ذرا بھی دھیان نہیں دے سکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ سمسٹر ڈراپ کر دے گی اور پھر جب ٹھیک ہوگی تو پھر سے اسٹارٹ کر دے گی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ ابھی ڈرائیور کو فون کر کے فارغ ہوئی تھی کہ وہ اس کو آ کر لے جائے جب داؤد نے اسے مخاطب کیا۔ جی بولیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا بات کرنے والا ہے۔ میری مما نے جب پہلے رشتے کی بات کی تھی تو آپ کے گھر والوں نے کہا کہ ابھی تو کچھ مصروفیات ہیں، اس کے بعد آپ رشتہ لائیے گا، لیکن اب آپ کے گھر والوں نے منع کر دیا۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ بہت پریشان تھا جب سے زیریا کے گھر والوں کی طرف سے انکار کا پتہ چلا۔ اس کا تو سکون غائب ہو چکا تھا۔ مجھے
शिज़ोफ्रेनिया हो गया है। बगैर किसी तहमत के उसे सीधी बात करने का सोचा तो वो उलझा। तो ये ही वजह है इनकार की, वो जवाबन बोली। इस वजह से इनकार कर दिया आपके घर वालों ने? वो हैरत से बोला, हाँ, ये तो कोई वजह नहीं इनकार करने की। वो थोड़ा मुतमिन हुआ। ये एक बहुत बड़ी वजह है वो, और आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये बात मेरे लिए हैरान किन है। उसने अपनी हैरत का इजहार किया। ये एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, इसमें इनकार की क्या वजह है? मुझे समझ नहीं आई। वो अभी भी ना समझ सका था। तुम्हें नहीं पता लोगों का रवैया? हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग भी बसते हैं जो ये समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाने वाला इंसान पागल ही है। पप्पू के इनकार के पीछे भी यही वजह है। वो नहीं चाहती कि किसी को मेरा ये राज पता चले और लोग मुझे पागल समझे, और मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए सच बता दिया, इस उम्मीद के साथ कि तुम किसी को नहीं बताओगे। आपकी बात उसने तफसील से जवाब दिया। लेकिन हमारा शुमार इन लोगों में होता है जो इस बीमारी को बीमारी ही समझते हैं। वो जवाब पर बोला। इस बात पर जीनिया से उसे हैरत से देखा। मैं अपनी मामा को भिजवाऊंगा और उम्मीद है कि इनकार नहीं होगा, वो सामने देखते हुए बोला। जीनिया ने कुछ सोचते हुए सहमत में सर हिलाया। क्या सोच रही हो? वो लाहौर में बैठी थी जब इमरान ने इसके सामने बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, वो हल्का सा मुस्कुराई। कुछ तो है, अगर बताना ना चाहो तो अलग बात है, वो जवाबन बोला। दोस्त मिला था आज। नाखूनों को आपस में रगड़ते हुए वो बोली। फिर वो चौंका। मैंने इसको सारी हकीकत बता दी, लेकिन वो कहता है कि उसको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। परेशानी को हाथ से रगड़ती हुए संजीदा अंदाज में बोली। ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो? हमरान ने पूछा। हो सकता है ये सिर्फ इसकी सोच हो, इसके घर वालों की ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर बाद में मसला हो जाएगा। उसने अपनी असल परेशानी बताई। मुस्तकबिल का सोच सोच कर हाल बर्बाद ना करो। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो फिर वो अपने घर वालों को संभाल लेगा। उसने उसे मुतमीन करना चाहा, लेकिन फिर भी मुस्बत सोचोगी तो जिंदगी आसान होगी, वो मुस्कुरा कर बोला। उसने साबत में सर हिलाया। क्या हुआ है हमरान? वो जो सर पकड़े बैठा था सबरा की आवाज पे चौंका। कुछ भी तो नहीं, सामने बैठी सबरा की तरफ देखते हुए वो जबरदस्ती मुस्कुराया। इस वजह से परेशान हो? उन्होंने कार्ड उसके सामने रखते हुए कहा। उसके चेहरे का रंग बदला। वो अरूज के निकाह का कार्ड था। जी, वो सर झुकाते हुए बोला। उसने तुम्हारे साथ ये क्यों किया? तुमने उससे पूछा? वो उसके सामने बैठते हुए फिक्रमंदी से बोला। वो कहती है कि उसे अब मुझसे मोहब्बत रही। वो अभी भी नीचे देख रहा था। ऐसे कैसे कर सकती है वो? मैं बात करती हूँ, वो गुस्से से बोली। नहीं, आप रहने दे। इनकी तरफ देखते हुए वो बोला। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। रो तो नहीं, वो परेशान हुई। मुझे ऐसा लगता है कि जीनिया की बद्दुआ लगी है मुझे, उसको जो ठुकराया था मैंने। आंखों को रगड़ते हुए वो बोला। ऐसा नहीं बोलो, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने उसे समझाया। बहरहाल आप पापा को कुछ ना बताइएगा, वो परेशान हो गए। वैसे भी कुछ दिनों तक वो आ जाएंगे तो इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा, वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है, वो जवाबन बोली, और दिल में सोचा कि उन्होंने मुस्तफ़ा से जीनिया की बीमारी छुपा कर अच्छा नहीं किया। फैमिली वालों से कोई बात नहीं छुपाते। एक और बात करनी थी। थोड़ी देर बाद हमरान बोला। बोलो। जीनिया कह रही थी कि उसने दाऊद को सारी हकीकत बता दी है, लेकिन उसे कोई इतराज नहीं, वो दोबारा रिश्ता भेजेगा। आप इनकार नहीं कीजिएगा, वो संजीदा अंदाज में बोला। सबरा ने साबत में सर हिलाया, लेकिन वो कुछ और सोच रही थी। वो अपने कमरे में बैठा जब नूरा ने उसे किसी हमजा के आने की इतला दी। वो घबरा गया और फौरन डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसके माथे पर शिकरों का जाल बचा। एक जरूरी बात करनी थी, हमजा सोफे से उठते हुए बोला। तो फोन कर लेते, घर आने की क्या जरूरत थी? वो नागवार अंदाज में बोला। क्या था फोन, लेकिन तुमने कॉल अटेंड नहीं किया और मुझे जल्दी थी इसलिए यहाँ आ गया। हमजा कदम उचका कर बोला। कौन मर गया था जो तुमसे सबर नहीं हुआ? वो तेजी से बोला। तुम्हारी मम्मी आई थी आज, हमजा ने कहा। फिर वो चौंका। वो मुझसे पूछ रही थी कि अगर वो जीनिया की शादी कर दे तो इसकी बीमारी में कमी आ सकती है। हमजा बोला। तो तुमने क्या कहा? उसने पूछा। मैंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, हमजा ने जवाब दिया। तुमने ऐसा क्यों कहा? मैंने तुम्हें जो कहा था तुमने वो क्यों नहीं
बोला। वो दबी दबी आवाज में गड़गड़ाया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा, वो तुम्हारे निकाह में है, जब तक तुम उसे तलाक नहीं दोगे वो किसी और के निकाह में कैसे जा सकती है। हमजा ने ताज्जुब से कहा, ये बात वो तो नहीं जानती ना, तो ये हो सकता है। वो जवाबन बोला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब, वो तुम्हारी इज्जत है। हमजा ने हैरत से कहा, नहीं है वो मेरी इज्जत, वो मेरा इंतकाम है। उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो सख्त लहजे में बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हारे कहने पे मैंने उसे पागल करार दे दिया, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, ये बहुत गलत है। हमजा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, क्या कर लोगे तुम, मत भूलो कि तुमने मुझसे पैसे लिए थे। वो सख्त लहजे में बोला, जिस काम के लिए पैसे लिए हैं वो कर दिया, याद रखो कि अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में सोचा भी तो मैं सारी हकीकत तुम्हारे डैड को बता दूंगा, और मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने करीबी लोगों को कह दिया है, अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। मैं घटिया जरूर हूँ, लेकिन घटिया पर मैं तुम्हारे लेवल का नहीं पहुंच सकता। थप्पड़ का बदला लेने के लिए तुमने उस लड़की के साथ क्या क्या किया, और अब ये सब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हमजा ने उंगली उठाकर उसे धमकी देते हुए कहा, और अगर मैं तुम्हारी हकीकत लोगों के सामने लेकर आ गया तो तुम्हारा करियर तो गया। उसने भी धमकी दी, अगर इसकी शादी हो भी गई तो तुम्हें कोई फायदा नहीं है। उसके हस्बैंड ने अगर उसे किसी और डॉक्टर को चेक करवा दिया तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, और अगर ये सब इसी तरह ही चलता रहा तो वो सोच सोच कर असल में ही किसी जहरी बीमारी में मुबतला हो जाएगी। इस तरह वो ज्यादा अरसा तकलीफ में रहेगी। अब की बार हमजा ने पैटर्न बदला, इस उल्टी खोपड़ी वाले से इसके मुताबिक ही निपटा रहा था। हमजा ने इसकी बात का कोई जवाब दिया और हमजा को जाने का कहा, लेकिन उसे हमजा का मशवरा पसंद आया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज मेरी जिंदगी में जो ये बड़ा दिन आ रहा है इसका क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। अरूज ने फोन पे हमरान से कहा, शुक्रिया की कोई क्या बात है, तुमने मेरा काम कर दिया और मैंने तुम्हारा। वो खुश दिली से बोला, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी स्टेप मदर को ये शो करवाया कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ताकि वो तुम्हें जीरिया से शादी के लिए मजबूर ना करे, लेकिन तुमने तो मम्मी पापा को मेरी पसंद के लड़के से शादी के लिए बनाया, जो कि मुश्किल काम था, तो शुक्रिया के हकदार तो तुम हो। अरूज ने जवाब दिया। वो मुस्कुरा दिया, अपनी तारीफ किसको बुरी लगती है। अरूज से थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फोन बंद कर दिया। वो मुस्कुराते हुए उस दिन के बारे में सोचने लगा जब जीरिया ने उसे थप्पड़ मारने की गलती की थी। शिकार की गर्दन एक दफा तन से जुदा करने में वो मजा नहीं जो इसको जख्मी करके तड़पा कर मरते देख कर है। वो अपने कमरे में टहलती हुई जीरिया कमाल को धूल चटाने के बारे में सोच रहा था। उसे कुछ ऐसा करना था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, किडनैपिंग करवा कर इसकी इज्जत का जनाजा निकालता हो, उसने सोचा, लेकिन फिर फौरन ही अपने इस ख्याल की नफी की। अगर खुद अगवा करता और सामने आता तो डैड की नजरों से गिर जाता। अगर किसी और से ये काम करवाता फिर भी जीरिया इस हादसे के बाद खुद को संभाल लेती और अगवाकारों को इनके मुस्तफा अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करती। शहरा जला देता हुआ अगला ख्याल आया, लेकिन इसने ये भी रद्द कर दिया। इस सब से भी जीरिया का हौसला, इसकी हिम्मत नहीं टूटती थी। उसे कुछ ऐसा करना था कि जीरिया और इसकी फुप्पो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए। तभी इसके जहन में एक और ख्याल आया। ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसने ये इस पर अमल करने के बारे में सोचा। अगर किसी से बदला लेना हो तो अपने लेवल के मुताबिक ना ले, अगले बंदे के लेवल के मुताबिक ले। प्लान में उसे थोड़ी तब्दीली करनी पड़ी थी। डैडी की कहानी सुनने के बाद उसने फैसला किया कि सबरा को वो कुछ नहीं कहेगा। इसके बाप ने इसकी माँ के लिए कितनी कुर्बानी दिया, वो उतना भी बुरा नहीं कि सबरा को नुकसान पहुंचाने का सोचे। इसके ख्याल में किस्मत इस पे मेहरबान रही, क्योंकि इसका प्लान ये ही था कि सबरा से झूठ मूठ की माफी मांगेगा और जीरिया और सबरा की नजरों में अच्छा बनेगा और मुस्तफा के सामने भी सुरखरू हो जाएगा। लेकिन अब उसे सबरा के सामने एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी। सब कुछ खुद ही अच्छे से हो गया। उसे पता था कि जीरिया कमाल आसानी से माफ करने वाली नहीं, लेकिन उसने माफी मांग ली और हैरत अंगेज तौर पर जीरिया ने माफ कर दिया।